And now, ladies and gentlemen, it is the welcome address, and to do the needful, I would like to invite Mr. Amrit Mann, the President, ITA. Good evening, everybody. We are privileged to have with us the most energetic, highly committed, one who has transformed the tourism sector in the country, Minister of Tourism, Honorable Shri G. Krishna Reddy ji. I am truly humbled to welcome the Minister on behalf of ITA. A special round of applause for him, please. I also welcome Shri Nakul Anand, Chairman of Faith and MD ITC Hotels, who is giving his heart out to promote Tourism India. Madam Jyoti ji, Shri Prasanna ji, Mr. Bobby Bakshi, Chairman of the convention, who has worked day and night to make it succeed. TV9 CGO, Mr. Raktem Das, Mr. Subhash Goyal, Mr. Jasbir ji, Mr. Sharad Chandra, and all present ladies and gentlemen. I am honored, humbled, and overwhelmed with the presence of stalwarts and legends here. Our theme is green, safe, and sustainable tourism with the vision of Shri Modi ji and Shri Gadkari ji. I am sure very soon we will have to shift to EV and hybrid vehicles. We must be prepared for the sudden changes and be ready to adapt. Sir, मैंने और भी बहुत कुछ बोलना था, but because of time shortage, I am not able to speak much, and Bobby ji has taken a lot of points, but still there are some teething problems I have to share. One is that no one is there to listen to us and take corrective ethical steps. Even legal ways, we have to approach courts for our rights, which I think one should be there to listen to our woes. Because of speed governance issue, we are not able to bring quality vehicles on road. We must be treated as at par with private vehicles and must be allowed to run our vehicles as per prescribed limit on that expressway or highway. There must be preference given to the vehicles carrying tourists, and vehicles should not be stopped in the name of checking papers unless there is any traffic violation. We need quality chauffeurs. We can get only if we give them their deserved respect. I must retreat that being a driver in India is one of the toughest jobs. I salute to all chauffeurs for working hard and making our country proud. There must be some kind of advisory. Bobby ji has already spoken on this front, but I'll repeat it again. There must be some kind of advisory to all to use tourist transport recognized operators only, recognized Minister of Tourism. By doing so, we will have more organized players, as unorganized one will be forced to become organized ones. Tourist transport operators must be given incentives for indirectly earning foreign exchange, directly or indirectly earning foreign exchange. Similar way, few years back, we were getting it. A tourist transport or a chauffeur is the first face of a country to all coming tourists, and a tourist spends almost 35% of time in the vehicle. So the vehicle and chauffeur need to be the best. Sir, in terms of vehicles, due to pandemic, our capacity is down by almost 35 to 40%, which needs to be addressed. If we need to achieve our targets without good transport, it is almost impossible to achieve, as road transport is the backbone of tourism industry or any country. We must thank Honorable PM Shri Narendra Modi ji for revival in domestic tourism by encouraging all for Dekho Apna Desh. I must say everybody to clap about this for Dekho Apna Desh. I think this particular dialogue has kept our heads above waters, and we are somehow able to survive. As Mr. Bobby was saying, कि पिछले 4-5-6 महीनों से हर ट्रांसपोर्टर, हर ड्राइवर, हर व्हीकल has been engaged. It is all because of that particular one dialogue. And I also congratulate Mr. Modi ji for making India the host country for G20.
I hope the wings we have got and we have to carry forward with these wings. Last, मंजिल बहुत दूर है, मैं अभी थका नहीं, मैं अभी हारा नहीं. हर एक मुश्किल मेरे निश्चय को और मजबूत करती है मंजिल को पाने की. हर ढलता सूरज मुझको मेरे में एक पक्की उम्मीद जगाता है, सुबह फिर सूरज उभरेगा. Special thanks to all our sponsors, those who have helped us and made today's gathering happen, especially BMW, Eicher Volvo, Ministry of Tourism, TV9 for being the media partner and all others who contributed directly or indirectly. Looking forward to meeting you all next year with a bigger show. I again thank you, all the dignitaries present here, all sponsors and members, and wish all Merry Christmas and Happy New Year in advance. Everybody to you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, now it is definitely our pleasure to have along with us our Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri G. Kishan Reddy, and he's our chief guest, and we are really very privileged and honored to have him along with us. So I would request him to deliver his address. Thank you, sir. Respected Sri B.K. Sahani ji, Chairman Sri Amrutman ji, Nakul Anand ji, Sri Prasanna Patwardhan ji, Jyoti Mahal ji, सुभाष गोयल जी, शरद चंद्र जी, जसबीर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी डिग्निटरीज, ऑल दी डेलीगेट्स, मैं गाड़ी उतर के अंदर आते वक्त मैं मास्क निकाल के आया हूं. आज पार्लियामेंट में एक नियम बोले थे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग मास्क लगाना, मगर कल से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, एक ही प्रार्थना कर रहा था, फिर हमारा देश में कोरोना ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के कारण एक सेक्टर को ही ऐसा इफेक्ट हुआ है, वो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, क्योंकि हम अभी अभी कोरोना से बाहर आया, एक अच्छा वातावरण में आज भारत है. आप दुनिया में कोई भी देश देखिए, टूरिज्म दृष्टिकोण से ही देखिए, दूसरा विषय छोड़िए. टूरिज्म दृष्टिकोण से अगर देखे भारत के जैसा, आप बांग्लादेश देखो, श्रीलंका देखिए, चाइना देखिए, नेपाल देखिए, पाकिस्तान देखिए, यूके देखिए, यूरोप कंट्रीज देखिए, कम समय में बहुत सफर हुआ. सफर होने के बाद भी अगर टूरिज्म एक अच्छे वातावरण से भारत में उभर के आया, दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है. मैं लगभग 4 साल से जम्मू कश्मीर का, जब 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MVS के नाते काम किया हूं, यूटीस का काम देखता था. पहला मेरा आने के बाद पहला मेरा काम था आर्टिकल 370 का हटाना. अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, श्रीनगर का, जम्मू का, आज ही मेरे को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का आके मिले थे.
वो मांग रहा था मेरे को स्टार होटल चाहिए, जम्मू में चाहिए और श्रीनगर में भी चाहिए। मैं आज पूछ रहा था थोड़ा ठंडा हो गया ना, टूरिज्म कम है क्या? नहीं किशन जी, टूरिज्म में बर्फ देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, इसलिए ठंडा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बता रहे थे। आप चार धाम देखिए, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, आज एक देश का एक वातावरण बदल गए। आने वाले दिन में मैं बताना चाहता हूं, जो भी जितने भी इंडियन कम्युनिटी विदेश में है, इंडियन डायस्पोरा विदेश में है, सभी लोग आने वाले दिन में भारत आएंगे। वो देखना चाहते हैं राम जन्मभूमि स्थान, वो देखना चाहते हैं बुद्ध भगवान जी का कुशीनगर, वो देखना चाहते हैं वाराणसी काशी, वो देखना चाहते हैं सोमनाथ, वो देखना चाहते हैं उज्जैनी, वो देखना चाहते हैं अमृतसर। आने वाले दिन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 100 आईसी सेंटर्स को हम विकास करने वाले हैं, 100 सेंटर्स। विदेश में रहने वाले भारत जिंदगी में यही सोचेगा, एक बात भारत आके ये सब देखना है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भगवान के आशीर्वाद से अगर हम आगे बढ़े, सबसे बड़ा सेक्टर भारत का, क्योंकि अपने पास जितने भी एएसआई का मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी अपने पास नेचर है, टूरिज्म है, कल्चर है, विदेश में किधर भी नहीं दिखेगा आपको। अब हम्पी से लेके अजंता एलोरा से लेके रेड फोर्ट से लेके दुनिया में कोई देश में ऐसा नहीं दिख सकते हैं। आप नेचर में देखिए, वाइल्ड लाइफ में देख सकते हैं, जो अच्छे वातावरण भारत में है। अभी हम रिवर्स के साथ साथ रिवर टूरिज्म विकास करने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए अलग अलग मीटिंग्स मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मैं कर रहा हूं। जल शक्ति के मिनिस्टर के साथ रिवर टूरिज्म के लिए मीटिंग कर रहा हूं। मैं अभी नितिन गडकरी जी का बात किया है, अगर कोई सेक्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद लाभ मिला है, वो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कारण नेशनल हाईवेज। जब मैं 1994 में पहली बार मैं अमेरिका में गया था, मेरे को गाड़ी में घुमाते थे लोग, ऐसी एक बस, टूरिज्म बस जब दिए थे, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अनंत कुमार जी, अमेरिकन गवर्नमेंट के इन्विटेशन, मैं स्टूडेंट लीडर का था, जब अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के नाते इन्विटेशन देते, लगभग 40 दिन अमेरिका में थे। रोड्स देखते थे, कभी भारत में ऐसा होता था। मैं उसके बाद संगठन में काम किया हमारा पार्टी का, नॉर्थ ईस्ट में जाता था। एक स्टेट से अगर दूसरा स्टेट जाने के लिए 16 घंटा 18 घंटा होता था, अंदर गाड़ी में जाना बाहर आना, ऐसा रहते थे रास्ते। आप देख सकते हैं, अगर कोई देश में विकास होना है, इन्वेस्टमेंट्स आना है, इसके लिए एक कनेक्टिविटी जरूरी है। बिना कनेक्टिविटी का कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं। बाबू थोड़ा पीछे कौन है? बिना कनेक्टिविटी का विकास नहीं हो सकता है, बिना कनेक्टिविटी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है।
बिना इन्वेस्टमेंट का कोई विकास भी नहीं हो सकता है। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट का काम देखता हूं डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा। मुझे मालूम है, मैं 20-20 घंटा, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है, रोड के ऊपर आंदोलन के कारण, इंसर्जेंस के कारण 20-20 दिन रोड के ऊपर आपका लारी रोकते थे, बसेस रोकते थे, कर्फ्यू होता था, रोड ब्लॉकेड होते थे, बंदूक पकड़ के लोग घूमते थे। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, एक व्यक्ति भी आज हाथ में गन नहीं है। लगभग 10,000 लोग बंदूक अभी छोड़ दिया है हमारा डिस्कशन के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण। अब जम्मू कश्मीर में अभी आजाद का अमृत महोत्सव में हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया है। 1947 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर वैली में, घर घर के ऊपर अगर तिरंगा ले रहा है, ये पहली बार है 2022 15 अगस्त। डल लेक के राउंड पे हजारों नौजवान, हजारों, लगभग हमारा लोग बताते हैं 50,000, मगर हजारों नौजवान तिरंगा लेके घूम रहे हैं पहली बार। आजाद से लेके 47 के बाद ऐसा स्थिति नहीं था। आज श्रीनगर में क्या स्थिति है? मेरा ऑफिस में मेरा स्टाफ इधर बैठे हैं, हमारा एपीएस लोग फोन करते हैं, मैं मिनिस्टर का परिवार हूं, श्रीनगर में रूम चाहिए, मेरा फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहे, कैसा कन्फर्मेशन दिलाते क्या? जितने चार्टर्ड फ्लाइट्स है, पार्किंग करने को जगह नहीं है श्रीनगर एयरपोर्ट में, छोड़कर वो जम्मू में जाके पार्किंग करते हैं। मैं नेशनल हाईवेज का बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवेज के कारण मैं अमेरिका में देखता था, अटल जी शुरू किया जब, क्या था, जब 75,000 करोड़ से शुरू किया, जब चर्चा होता था देश में, अटल जी बहुत बड़ा साहस किया है, किधर से लाएंगे पैसे, ये नेशनल हाईवेज कैसा बनाएंगे। स्वर्ण चतुर्भुज के नाम पर नेशनल हाईवेज का शुरुआत किया, मगर बीच में 10 साल फिर नेशनल हाईवेज का काम पीछे था। आज दुनिया में एवरी डे 30 किलोमीटर नेशनल हाईवेज कोई देश में बनता है, वो सिर्फ भारत में बन रहे हैं। आज नेशनल हाईवेज के कारण कितना लाभ होता है, यू कांट काउंट। हेल्थ ठीक रहते हैं, गाड़ियां ठीक रहते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, ऑयल कंजम्पशन ज्यादा होता है, समय बचता है। मैं अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहता हूं, जिलों में जाते रहता हूं। जिलों में बताने के लिए क्या रहते हैं? नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज छोटा चीज नहीं है। अभी नॉर्थ ईस्ट में लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं अभी। ये क्यों ये नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं? कनेक्टिविटी ठीक होगा। अभी असम से मैं मेघालय जाने गया था। मैं 20 साल पहले भी गए, 1990s में गए, जब कितने घंटे लगते थे। अब 2.5 आवर्स में शिल्लांग से गौहती में पहुंचा हूं अभी। एक वातावरण, अभी बजट बढ़ाने के लिए बोल रहे थे आप। मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट का पैसे से टूरिज्म नहीं बढ़ता, टूरिज्म बढ़ेगा आप लोगों के कारण। टूरिज्म बढ़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कारण। हमारा होटल से टूरिज्म का एक एक भेज दे रहे हैं हम, लॉस है।
हमारा काम होटल चलाने का काम नहीं है। होटल चलाने वालों के लिए गुड गवर्नेंस देना चाहिए, ये मेरा काम है। इसलिए भारत में इसलिए हम निर्णय किया है अडॉप्टिव हेरिटेज के नाम पर। लगभग मेरे पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास, मिनिस्टर कल्चर के पास 3600 मॉन्यूमेंट्स है। नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बातचीत करके निर्णय हुआ है, हम जो भी अगर मॉन्यूमेंट CSR के द्वारा चलाना चाहते हैं हम उनको दे देंगे हम, क्योंकि मॉन्यूमेंट के पास प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं रहते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर छोटे छोटे कैंटीन नहीं रहते हैं, सावनीर सेंटर नहीं रहते हैं, पार्किंग प्लेस नहीं रहते हैं, पीने का पानी व्यवस्था नहीं रहते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा हूं अभी लगातार, मैं मंत्री बनने के बाद अकाउंट ले रहा हूं एवरी डे क्या हुआ है, कितने टॉयलेट्स नया बनाया। मगर सरकार का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के द्वारा इसका भी आने वाले दिन में अपने को रिजल्ट दिखेगा। अगर आने वाले 1-2 साल में भारत का टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन भारत होगा दुनिया वालों के लिए, क्योंकि G20 कंट्रीज का मीटिंग होगा। आपके लिए, मेरे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय। आजाद के बाद इतना बढ़िया, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट कोई इवेंट्स अभी तक नहीं हुआ है। 1 साल तक चलेगा ये मीटिंग्स, 250 मीटिंग्स 55 सिटीज में होगा। इससे पहले इंडोनेशिया था, अध्यक्षता वो करते थे G20 का, एक साल एक देश करते हैं। G20 कंट्रीज मीन्स 85% ऑफ GDP दुनिया का इस 20 कंट्रीज से आता है। जो टॉप कंट्रीज है उसमें भारत भी है। G20 कंट्रीज में एक मीटिंग में 1,000 लोग आते हैं, बैक ऑफिस के लोग, स्टाफ सब मिलके, फॉरेनर्स आते हैं। 1 साल तक होगा। जो जितने भी फॉरेनर्स 1 साल तक भारत में आएंगे, सब, क्योंकि सभी प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, सभी प्रेसिडेंट्स रहेंगे एक जगह, फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स आएंगे, होम मिनिस्टर्स आएंगे, टूरिज्म मिनिस्टर्स आएंगे, कल्चरल मिनिस्टर्स आएंगे, कल्चरल सेक्रेटरीज आएंगे, टॉप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मीटिंग्स होगा। कोई ऐसा नहीं है, 250 मीटिंग्स होगा, अलग अलग मीटिंग्स होगा, अलग अलग सेक्टर का होगा। जो भी भारत में आते हैं, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे एम्बेसडर बन के उनके देश में जाके बोलना चाहिए, उनके दोस्तों को, उनके फ्रेंड्स को, उनके गांव के लोगों को, उनके शहर के लोगों को, उनके देश के लोगों को, जाइए भारत देखिए कितने अच्छे देश है। एक वातावरण बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एम्बेसडर बनना चाहिए, मगर हमारे लिए एक एम्बेसडर, बहुत बड़े एम्बेसडर भारत के लिए है। कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी है। जो भी भाषण देखिए, अमेरिका में देखो, हैदराबाद में देखो, अहमदाबाद में देखो, दिल्ली में देखो, गली में देखो, कभी भी भाषण देते हैं, टूरिज्म के बिना भाषण उनका समाप्त पूरा होता है। इसीलिए हमारा एम्बेसडर भी है, मगर हम चाहते हैं जितने भी हजारों डेलीगेट्स भारत आएंगे 250 मीटिंग्स में, एक व्यक्ति परिवार के साथ आएंगे, जो हमारा हॉस्पिटैलिटी देखने के बाद, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि भगवान के स्वरूप है, इसलिए हम उनको ठीक तरीके से, वो अगर G20 मीटिंग सफल बनाने के बाद भारत के लिए फॉरेन टूरिस्ट FTA बहुत बढ़िया वातावरण होगा, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स अच्छे वातावरण होगा। कोई डरने का बात नहीं है, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे, जरूर आएंगे,
उनको दूसरा रास्ता नहीं है, भारत ही एक रास्ता होगा। मगर हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, हम ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे। मैं अमेरिका में गया, एक साउथ डकोटा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में लेके गया हमारे को। कोई एक पर्वत है, हजारों लोग हैं। क्या हुआ, छोटा हमारा एक 2-3 फेसेस, लाइट फेसेस बता रहे, उसको देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। अरे भैया, मेरा गली गली में भारत में ऐसा दिखता है, गली गली में। मगर हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। अभी हमारा एम्बेसडर ठीक है, अभी हमारा मार्केटिंग होगा जरूर, शुरुआत भी हो गया। इसीलिए हम अगर कोई अच्छे भविष्य होगा, क्योंकि नाउ वी आर इन 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। हम कोई डरने की बात नहीं है। यूनाइटेड किंगडम को हम पीछे हटे, हम 6 नंबर में थे। अभी वो यूनाइटेड किंगडम को, अंटे इंग्लैंड ब्रिटेन को पीछे हटकर हम 5वां नंबर पे आए हैं। भारत कोरोना का समय के बाद भी, क्योंकि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंग्वेजेस है, रीजन्स है, रिलीजियस है, राजनीतिक पार्टी है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता, एक उधर जाता है, एक खींचता है। फिर भी कोरोना रहने के बाद भी आज भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। भारत, मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हमारे देश में अभी जीएसटी के बाद बार बार बोल रहे थे, लगभग हर महीना 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। अच्छे वातावरण में आगे बढ़ रहे। मैं म्यूजियम्स बढ़ा रहे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ा रहे, अलग अलग जगह। प्रधानमंत्री जी बोले, देखो अपना देश। आम जनता को अपील किया है, जिंदगी में हर परिवार मिनिमम 15 डेस्टिनेशंस का देखने के लिए अपील कर रहे हैं। मैं अभी हर स्कूल में टूरिज्म क्लब्स खोल रहा हूं, स्टूडेंट टूरिज्म क्लब्स। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जाते नहीं, हमारे बच्चे चर्चा करते हैं मेरा किधर जाना है हॉलिडे, आप लोग नहीं तय करते। घर में रहने वाले आपके बेटे बेटी पोते पोती ये लोग तय करते हैं। इसलिए मेरा टारगेट है हर स्कूल में स्टूडेंट क्लब्स खोलना है, टूरिज्म क्लब्स, स्टूडेंट टूरिज्म क्लब्स। क्योंकि उनको नियर बाय टूरिज्म डेस्टिनेशन लेके जाना, बताना, उसके बाद ऑफिस आने के बाद उसके क्या देखा है, पेंटिंग करवाना, एसे राइटिंग कंपटीशन करवाना, वक्तृत्व कंपटीशन करवाना। उनके बाद नेक्स्ट टाइम मीटिंग में हम पूछने वाले हैं, आपका पिताजी को लेके गए क्या, आपका माताजी को लेके गए क्या। एक वातावरण टूरिज्म के बारे में, अपने मॉन्यूमेंट्स देखने के बारे में, अपना विरासत, अपना कल्चर बताने के बारे में। अभी क्योंकि आप लोग एक बात देखिए, अपने घर में हैदराबाद में क्या है, वाराणसी में क्या है, आपके बच्चे नहीं बोल सकते। मगर सिंगापुर में क्या है, अमेरिका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अपने बच्चे बोलते हैं छोटे छोटे। वो लोग जितना नॉलेज विदेश का है, भारत का उतना नॉलेज नहीं रहते। इसीलिए अपने परिवारों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने देश के बारे में बताने के लिए प्रयास कर रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आदेश है, सभी स्कूल्स में टूरिस्ट क्लब्स खोलना, उनका कॉन्फ्रेंसेस होना, बच्चों का नियर बाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ले जाना, बच्चों को बताना, सिखाना, उनका माताजी के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, परिवार के साथ वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने के लिए इंकरेजमेंट करना। ये छोटे छोटे विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को मार्गदर्शन करते हैं। बहुत लोग बातचीत करते हैं, मंत्री बनने के लिए बहुत खुशी होती है,
मंत्री बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, मगर मोदी सरकार में मंत्री बन के काम करना बहुत मुश्किल है। हमारा मिनिस्टर्स काम करते हैं, क्या क्या पनिशमेंट है हमारे को मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना असाइनमेंट देते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस करते हैं हर दिन, हर विषय पर। ये आजाद का अमृत महोत्सव है, अलग अलग कार्यक्रम। अभी विदेशों में जो एम्बेसीज है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, हर एम्बेसी सिर्फ मीटिंग्स ईटिंग्स का काम नहीं करना चाहिए, टूरिज्म कल्चर का काम भी करने का जिम्मेदार दिया है। हर एम्बेसी में टूरिज्म ऑफिसेस ओपन करने वाले हैं। ऑलरेडी 20 कंट्रीज का जो ज्यादा फॉरेन फुटफॉल इंडिया में जो जिस देशों से आते हैं, उस एम्बेसीज में ऑलरेडी हम टूरिज्म ऑफिसेस खोल चुके हैं, पहली बार आजाद के बाद। अभी भारत में भी वो जो फॉरेन एम्बेसीज में आए, वो लोग आपके जैसे उस देश के टूर ऑपरेटर्स हो, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो, ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, और जितने भी मैं टूरिज्म का एजेंट्स होते हैं, सबके साथ इंडियन एम्बेसीज में जो टूरिज्म ऑफिसर्स है, उनका जिम्मेदारी है, उनका सरकार से बातचीत करेंगे। आने वाले दिन में फॉरेन टूरिस्ट का जो प्रयास करने के लिए एक व्यवस्था हो रहा है, वो अच्छे रिजल्ट होगा। उसके साथ साथ इंडियन डायस्पोरा आप लोगों का नेतृत्व में होता है। इंडियन के जो इनबाउंड टूरिज्म है, अच्छे वातावरण, मैं अभी भी बताया, होटल वाले भी इतना खुशी है, ट्रांसपोर्टर्स इतना खुशी है, क्योंकि एक अच्छा वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं भगवान से 2 दिन से यही प्रार्थना करता हूं, हम कोई आने वाले दिन में, क्योंकि अभी अभी हम बहुत तकलीफ से हम बाहर आकर थोड़ा बोले थे, फेसों के ऊपर चमक रहा है अभी, मगर वैसी रहना चाहिए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं। दूसरा, जो भी इश्यूज बताए, ये लगातार चर्चा करने का विषय है। जरूर सरकार आपके साथ रहना चाहिए, आप सरकार के साथ रहना चाहिए। हम दोनों मिलकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के जो 5 स्टार 3 स्टार होटल चाहिए, ऐसा इसके लिए स्टार होटल्स का एसोसिएशंस के साथ मीटिंग किया हूं। अभी शिल्लांग में अभी एक होटल, ताज होटल खोले हैं, अभी एक और एक होटल रेडिसन होटल भी खोलने वाले हैं। मैं अभी जाके ताज होटल में रोका, अभी मीटिंग्स हुआ था अभी, क्योंकि हर छोटे छोटे विषय पर भी अब काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। मैं एक बड़ा ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट का एक समिट दिल्ली में करने वाला हूं। अभी क्रूज टूरिज्म का वाराणसी से लेके नॉर्थ ईस्ट तक टूरिज्म का एक बड़ा इनाग्रेशन अभी करने वाला है। बॉम्बे में अभी वर्ल्ड टूरिज्म इन्वेस्टर्स का मीटिंग किया है। ऐसा छोटे अलग अलग विषय पर होम टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अभी आज पार्लियामेंट में जवाब दिया हूं, हमारा बहन जी बैठे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महिलाओं का रोल क्या है। कमी, इधर लोग तो कमी देख रहे हैं, मगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 60% महिला है आज भारत में, 60%। अब कोई हो फ्लाइट देखिए, वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, डोमेस्टिक फ्लाइट हो, कोई जेंट्स नहीं दिखेगा, खाली पायलट में भी ज्यादा आजकल महिला है। होटल्स चला रहे हैं, स्टार्टअप से लेके टाटा तक आज महिलाओं का रोल हर हॉस्पिटल सेक्टर में, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। होम टूरिज्म महिला चला रहे हैं। अभी केवड़िया जाके देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑटो चलाते हैं हम,
ऑटोस दिए, महिलाओं को फ्री ऑटोस दिया है, वो खुद विदाउट इंटरेस्ट ऑटो दिया है, कम डिस्काउंट में सब्सिडी में दिया है, वो चलाने के लिए महिलाओं को रखे। अभी अभी ताजमहल के पास भी हम ऑटोस लगाने के लिए प्रयास करें। हर आने वाला साल में मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम पूरा जो भी हो सकता है हम मिलके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जो भी समस्या, अभी बैंकिंग का समस्या हो, नहीं तो अलग अलग टैक्सेस का समस्या हो, बॉर्डर पे स्टेटों के बीच में रोकने का समस्या हो, जरूर उस दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही की अनुरोध करता हूं, अभी मैं अशोक होटल में एक मीटिंग किया हूं, जो दिल्ली में रहने वाले जितने भी ड्राइवर्स रहते हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग करके उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए लगभग एक व्यक्ति कम से कम G20 कंट्रीज के 5 लैंग्वेजेस सिखाने के लिए प्रयास करें, और टूरिस्ट गाइड्स को लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रयास करें। टूरिस्ट गाइड्स का ट्रेनिंग खोल रहे। आने वाले दिन में हर विषय पर काम करना पड़ेगा हम मिलके, एक सेक्टर का नहीं, पूरा सेक्टर मिलके, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरा मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे तो जरूर भारत में जिस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देश का विकास में नंबर 1 होगा, क्योंकि सिंगापुर, अलग अलग कंट्री सिर्फ टूरिज्म के द्वारा उस देश चलता है। गोवा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू टूरिज्म के द्वारा होता है, मगर गोवा से नहीं तो सिंगापुर से दिल्ली कोई कम नहीं, उत्तर प्रदेश कोई कम नहीं, वाराणसी कोई कम नहीं। वाराणसी में अभी रूम मिलना मुश्किल है। अभी वाराणसी में मैं अभी रिसेंटली गया था, काशी तमिल संगम, लगभग 20,000 लोगों को तमिलनाडु से, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, सबको एवरी डे, 1 महीने तक चला, एवरी डे 2,500 तमिल हमारे भाई बहनों को, छात्रों को काशी में लाना, 2 दिन 3 दिन इधर दिखाना, उसके बाद अगर अयोध्या जाना है तो अयोध्या लेके जाना, दिल्ली आए तो दिल्ली लाना। वैसा काशी तमिल संगमम बोल के एक कार्यक्रम किया है। अभी हमारा बुद्धिज्म का हम अच्छे प्लान करें, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, हर बुद्धिज्म कंट्रीज से जरूर उनके जिंदगी में जो बुद्धिज्म को मानते हैं, ये क्योंकि लैंड ऑफ बुद्धिज्म है भारत, इधर आना चाहिए, उसका प्रयास करें। जो इंडियन डायस्पोरा है वो जरूर आना चाहिए भारत में जिंदगी में। अब वो अमेरिका में सेटल होने दो उनके परिवार के साथ, ब्रिटेन में सेटल होने दो, कनाडा में सेटल होने दो, एक बात मेरा मातृभूमि को आना चाहिए, उसका ऐसी वातावरण बनाना चाहिए। ऐसे अलग अलग, एक ही मेरा है भगवान से प्रार्थना, फिर एक बात करता हूं, कोरोना नहीं आएंगे। जो हमारा एजेंडा है, हमारा प्लानिंग है, उस प्लानिंग के द्वारा हम मिलकर आगे बढ़े तो आने वाले दिन में टूरिज्म सेक्टर एक अच्छे होगा। आप लोग भी एक अच्छे वातावरण के साथ हम इस क्राइसिस से और बाहर आ जाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बात, जो आज के कार्यक्रम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए जो मौका दिया गया, मैं आप सब लोगों को, खासकर एसोसिएशन के, जो इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, अध्यक्ष को, महामंत्री को, चेयरमैन को, जो अदर डिग्निटरीज को मेरे ओर से, भारत सरकार के ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Mananiya Reddy sir, thank you very much for your constant support, motivation and encouragement. I would request all the gentlemen and the dignitaries in the dais to come forward for the release of the manual. एक एक करके दे दो।
साथ में शरद जी को भी मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ. शरद जी, let's release the manual. Thank you, everyone. I would request everyone to take their seats in the dais, except our Honorable Minister. Now I would like to request our Convention Chairman, Shri K. Sahane, for the vote of the thanks. I will request all the other gentlemen to take their seats in the dais and the audience, and I would request our Honorable Minister to be on the stage, please. And I would now request Mr. Karthikeya Sharma, the Executive Editor, TV9 Digital, to come forward and conduct the one-to-one session. Conversation is taking place. This conversation is taking place at the fag end of the program, and most of the issues have been addressed by the Honorable Minister. Again, I would say very warm welcome on behalf of TV9 Network and ITA. And I think you have spoken on multiple issues, but there is one thing which I must draw your attention to, because tourism is backbone of the economy. Prime Minister has opened up a lot of areas. You have spoken on connectivity. लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक भी की और बैठक में कोविड के बारे में चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी ने एहतियात की बात की है. आपने यहाँ इस मंच से रोजगार की बात की है. तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इतने सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं, which is primarily labor intensive, it provides employment to lakhs and lakhs of families, कि सुरक्षा भी हो और रोजगार भी रहे, जिससे जो लोगों का कामकाज है वो चलता रहे. क्वेश्चन आंसर्स आप ही पूछते बोले. नहीं, आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा इसमें. नहीं, आप क्या क्योंकि जो भी अदर एक्टिविटी होते हैं टूरिज्म सेक्टर में, आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए तो लगभग 50 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है. अभी हमारा बस के बारे में बताए, अगर एक टूरिज्म बस बेंगलुरु गए, अगर एक हफ्ते में टूर किए तो 1 करोड़ रुपीस का टर्नओवर होता है. इसीलिए टूरिज्म सेक्टर भारत के आने वाले जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. इसलिए टूरिज्म सेक्टर के बारे में बहुत नेग्लेक्ट हुआ भारत में. अभी कनेक्टिविटी, रोड्स कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और ट्रेन कनेक्टिविटी हो, आकर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी. नॉर्थ ईस्ट में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने के कारण लगातार 2-2 साल में एक चीफ मिनिस्टर बदलते थे. अभी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी के कारण एक स्टेबल गवर्नमेंट आया. पहली बार गुजरात के बाद देश में एक हेल्थी कंपटीशन ऑन डेवलपमेंट्स, हेल्थी कंपटीशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स. पहले कोई स्टेट नहीं करते थे. यूपी इन्वेस्टर्स मीटिंग, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स मीटिंग,
पहला शुरुआत किधर से हुआ? गुजरात से शुरुआत हुआ। अभी सभी स्टेट्स कंपटीशन, मेरे स्टेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, मेरे स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आना, मेरे स्टेट में इंडस्ट्रीज आना, एक कंपटीशन। ये आने वाले दिन में भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अच्छे वातावरण होगा। जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर के द्वारा होगा। आप प्रधानमंत्री जी की जो सोच है G20 को लेके कि भारत को शोकेस करने की, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि बाहर से बहुत लोग आए हैं, आपने कुछ सेक्टर्स खोले भी हैं, कुछ नई जगह लोगों को लेके भी गए, आपके मार्गदर्शन में हुआ ये, तो आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है? आप क्या करेंगे और प्रधानमंत्री की विजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं अभी बोला हूं, मोदी सरकार में मंत्री बनना पनिशमेंट होता है, क्योंकि अभी G20 कंट्रीज में 55 सिटीज का आइडेंटिफाई किया है। 55 सिटीज में जाके होटलर्स जो है उनका मीटिंग किया है। 55 सिटीज में जो टूर ऑपरेटर्स है उनके साथ मीटिंग किया है। 55 सिटीज में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका गाइड्स है उनका मीटिंग किया है। उनको ट्रेनिंग भी दिया है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। जो मार्केट ले जाते हैं शॉपिंग के लिए परिवारों को, उस मार्केट के लोगों के साथ भी मीटिंग की है। क्योंकि अपने देश में कुछ अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार होते हैं। फॉरेनर दिखे तो ज़्यादा पैसे पूछते हैं शॉप्स में भी, ऐसा हम पूरे बोर्ड रेट क्या होगा, डॉलर्स में पेमेंट की तो कितना पैसे लेना चाहिए पूरा शॉप्स में, जिस बाजार में लेकर जाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जो लोग आते हैं विदेशों से, हजारों लोग आते हैं एक साल के अंदर G20 कंट्रीज के लिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता के साथ, पिता के साथ लोग आते हैं। मीटिंग होने के बाद देश घूमने के लिए देखने के आते हैं। वो वापस जाने के बाद एवरी फैमिली, एवरी पर्सन ही शुड बिकम एम्बेसडर ऑफ इंडिया। भारत में मैं गया हूँ, मीटिंग करके आया हूँ, मैं वाराणसी गया हूँ, मैं बेंगलुरु गया हूँ, मैं एमपी गया हूँ, हैदराबाद गया, मैं गोवा गया, ऐसा 55 कंट्रीज में मीटिंग होगा। वो वापस जाने के बाद अपने भारत के लिए अच्छे शब्द यूज करना चाहिए। आने वाले दिन में वो फिर आना चाहिए, उनका फ्रेंड्स रिलेशंस को भारत भेजने के लिए टूरिज्म के प्रयास करना चाहिए। ये वातावरण हम कर रहे हैं। सर, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू स्पीक ऑन the initiatives you have taken specifically under your tenure on the Ramayan circuit, Buddhist circuit, and creating a proper connectivity so that the experience of both domestic and a foreign tourist is wholesome and satisfactory in nature. मैं आप लोग बस चला रहे हैं, अगर आप चलाने को आ गए तो मैं ट्रेन भी दूंगा आप लोगों को। एक एक ट्रेन अभी 3500 कोचेस रेडी किया हूं। अगर आप लोग ट्रेन भी लीजिए, सर्किट के चलाइए। मैं एक अंबेडकर सर्किट के नाम पर चला रहा हूं, बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर चला रहा हूं। एक दिल्ली से शुरू हो गया रामायण सर्किट, नेपाल जाके जनकपुरी से लेके आखिरी में तेलंगाना भद्राचलम राम मंदिर तक गए हैं। ऐसा सर्किट भी चला। मैं ट्रेन भी देने के लिए तैयार हूं आप लोगों को। एक एक ट्रेन में जो कोचेस रहते हैं, एक कोच में डाइनिंग हॉल बनाइए, एक कोच में सिनेमा थिएटर का जैसा बनाइए, एक कोच में लाइब्रेरी बनाइए। ऐसा जितने कोचेस चाहिए, जैसा बनाना चाहिए वैसा कन्वर्ट करके ट्रेन भी चलाने के लिए तैयार हो। इसलिए आने वाले दिन में टूरिज्म के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और काम करना है, बहुत कुछ करना है। अभी वी कंप्लीटेड ओनली 5%, 95% टूरिज्म डेस्टिनेशन में काम करने का है। एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी लाने वाले हैं अभी हमारे पास। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज तक पार्लियामेंट में टूरिज्म के बारे में कोई एक्ट नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है। 75 इयर्स हो गया, टूरिज्म के बारे में एक भी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुआ है। जवाब देते रहते हैं टूरिज्म कैसा चल रहा है, टूरिज्म कैसा है, कोई प्रॉब्लम हुआ, ये चर्चा करते हैं, मगर कोई एक्ट नहीं है। अभी पहली बार एक नेशनल टूरिज्म कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने वाले हैं, एक नेशनल टूरिज्म बोर्ड बनाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जरूर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है ना तो स्टेट लिस्ट में, ऐसी चल रही है टूरिज्म। So you have taken a lot of interest in Northeast. Northeast traditionally has been a very ignored area. A lot of people wanted to go to Northeast, but they didn't know how to go to Northeast. Lohit, the Bird Hornbill Festival,
or you know, places in far off Assam like Margarita. People had no idea. Can you just take us through the sort of work you have done under the vision of Prime Minister Modi in opening up Northeast to the domestic tourists and as well as those foreigners who have no idea how diverse, beautiful and nationally integrated Northeast is with the Indian mainstream sentiment? लोगों को ब्रांडिंग करना और पब्लिसिटी करना ये तो जरूरी है। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट रखना। नॉर्थ ईस्ट में इतने साल एनवायरनमेंट नहीं था। मैं अभी बताया था मेरा भाषण में, 20-20 दिन चक्का जाम होता था, कर्फ्यू रहते थे, फायरिंग होता थे, जो गाड़ियां जाते हैं लारी रोककर बंदूक बताकर उसमें लारी के अंदर जितने भी सामान लूटते थे, ये स्थिति था। अभी आपको वातावरण बदल गए। लगभग 10,000 मिलिटेंट्स जो इंसर्जेंसी के ग्रुप में रहते थे बंदूक छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। अभी नॉर्थ ईस्ट में रोड्स, पहले पेपर के ऊपर रोड्स होता था, पेपर के ऊपर डेवलपमेंट होता था, मगर फील्ड के ऊपर डेवलपमेंट होता। अभी जियो टैगिंग कर रहे हैं, हर छोटे छोटे वर्क भी हम जियो टैगिंग के द्वारा काम हो रहे नहीं हो रहे हम काम देख रहे हैं अभी। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स बनाए, नया एयरपोर्ट शुरुआत हो गया। अभी नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी हर स्टेट कैपिटल से अच्छा जोड़े हैं, जिला हेडक्वार्टर्स भी नेशनल हाईवेज के साथ जोड़ रहे हैं हम। अभी फ्लाइट्स चल रहे, हेलीपैड्स बना रहे, हेली टैक्सेस चलाने वाले हैं, क्योंकि पहले वातावरण के कारण फ्लाइट्स हेलीकॉप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहते थे। कभी फ्लाइट्स बंद होता पता नहीं, कभी हेलीकॉप्टर कैंसिल होता पता नहीं, बुकिंग करने के बाद भी बरसात के कारण, एनवायरनमेंट के कारण वो कैंसिल होता था। अभी एक विश्वास हो गया, नेशनल हाईवेज होने के बाद मैं जरूर मंजिल पे समय पे पहुंचूंगा। बरसात आने दो, कोई भी आने दो, मैं पहुंचूंगा 1 घंटा इधर इधर। ऐसी कनेक्टिविटी, ट्रेन अगर आए तो ट्रेन का कनेक्टिविटी बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म और बहुत बड़ी विश्वास है। अभी आज तक टूरिज्म सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी मैं होटल वालों से स्टार होटल वालों से बातचीत करे, मीटिंग्स किया हूँ। थोड़ा होटल्स, नया होटल्स भी शुरुआत होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का फेस टूरिज्म का बदलेंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आपका प्लस लैंड नहीं देते होटल बनाने के लिए, कोई ऑफिस बनाने के लिए लैंड नहीं मिलता है, क्योंकि लैंड पॉलिसीज अलग अलग 8 स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग पॉलिसीज है। लैंड पॉलिसी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना चाहिए, क्या सब्सिडी होगा, क्या क्या लैंड बैंक बनाना चाहिए, लैंड पूल सेंटर होना चाहिए। ऐसा उनसे चीफ मिनिस्टर से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट, न्यूजीलैंड जाते हैं लोग, स्विट्जरलैंड जाते हैं, मगर उससे अच्छे एनवायरनमेंट, सीन, नेचर नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं। न्यूजीलैंड जाने का जरूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है, अफ्रीकन कंट्री जाने का जरूरत नहीं, उतने अच्छे सीन्स हमारे। अभी मैं जो रोड साइड 100 रोड साइड अम्यूनिटी सेंटर्स बना रहा हूं, ऑलरेडी लगभग 46 का टेंडर भी हो गया। क्योंकि मैं पहली बार जब मंत्री बनने के बाद मैं गुवाहाटी से शिलांग गया, एक जगह भी कोई हमारा बहन आती है, माता आती है, कोई अगर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, इधर से 3 घंटे तक अगर कोई महिला है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो दिन मैं महसूस किया हूं, महसूस करने के बाद अभी रोड साइड अम्यूनिटीज 100 सेंटर्स बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट ईयर तक पूरा होगा वो। अभी काम शुरुआत हो गया, कंस्ट्रक्शन का एक्ट शुरुआत है। ऐसा छोटे छोटे विषय पर भी अभी पूरे जितने भी पेट्रोल पंप्स है उनका पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ मीटिंग किया हूं। अभी हरदीप सिंह पुरी जी, मैं मीटिंग करके सभी पेट्रोल पंप में जितने भी टॉयलेट्स है 24 आवर्स ओपन होना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। जो भी पेट्रोल पंप को आने वाले, रोड के आने वाले भी गाड़ी रोककर पेट्रोल पंप में उनका जरूरत पड़े तो टॉयलेट यूज करना चाहिए, वैसा लुक रखना चाहिए। ऐसी छोटे छोटे विषय पर भी काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हमारे को आदेश दिया है, वो काम चल रहे हैं। पिछली बार जब आपसे इंटरव्यू हुआ था, जब आप TV9 नेटवर्क के समारोह में आए थे, तब भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बड़ा
सस्ता होता है कि अगर आप बैंकॉक चले जाएं या आप सिंगापुर चले जाएं अपने परिवार के साथ, लेकिन अगर आप विंटर्स में श्रीनगर जाना चाहें या जैसलमेर जाना चाहें तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ा अनअफोर्डेबल हो जाता है। और आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपनी स्पीच में बोला था, लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप डोमेस्टिक टूरिज्म पे ध्यान रखिए, लोगों को नौकरी मिलेगी, आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो इस पे आपने क्या देखा? पिछले साल में कुछ लोगों में बदलाव आया, लोगों ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ गए, और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जो एकदम महंगे हो जाते हैं? मैं एक तरफ मैं बता रहा हूँ, रूम नहीं मिल रहे, फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहे, इतना रेट बढ़ने के बाद भी भारत में देखने के लिए लोग आएंगे। दिस इज अ रियलिटी। एक 1 लाख रुपए का एक दिन का श्रीनगर में रूम रेंट ले रहे। 40,000 50,000 श्रीनगर जाना है तो दिल्ली से पैसे, फ्लाइट टिकट का पैसे वे कर रहे। क्योंकि ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो, एनवायरनमेंट रखो, लोग पैसे देने के लिए तैयार है, गरीब लोग भी तैयार है। मगर आपका बात सही है, अपना देश में क्योंकि फैसिलिटीज कम है, लोग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सर्विस कम है। डिमांड के अनुकूल सर्विस बढ़ाना चाहिए। डिमांड जितना, डोमेस्टिक टूरिज्म का बात करूं मैं, जितने लोग आना के, जो केदारनाथ जाने के लिए हम रोड्स बंद करना पड़ता है, नहीं तो रैम्पिड हो जाते हैं जी। बंद किया है केदारनाथ को, आगे एक अंदर आने नहीं दिए हम जो जगह जाते हैं। इसलिए डिमांड का जितना है उसके सर्विस बढ़ाना चाहिए। जरूर उस दृष्टिकोण से सब मिलकर, सरकार सिर्फ नहीं कर सकते, आप सब जनता सब मिलकर ये काम करना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना टूरिज्म भारत में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपसे आखिरी सवाल, टूरिज्म इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म इज अबाउट इकोनॉमी, टूरिज्म इज अबाउट people, but tourism is about brand India also, culture also, culture and brand India। तो आपको क्या लगता है कि टूरिज्म ने हिंदुस्तान की ब्रांड को कैसे मजबूत किया है और इसको किस दिशा में आगे जाना चाहिए? बहुत हम टूरिज्म के विषय पर बहुत पीछे है। जितने मार्केटिंग करना चाहिए विदेश में छोड़ो, भारत में भी। मैं अभी पहला बताया, आपके घर में भी कितने बच्चे हैं? एक है ना, उनसे पूछो, सिंगापुर के बारे में बताएंगे, वाराणसी में क्या है, हैदराबाद में क्या है, बेंगलुरु में क्या है, नहीं बताएंगे। उनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग करते हैं। अभी हमारे को नरेंद्र मोदी जी आदेश दिया है, दुनिया में सबसे बढ़िया, जितने पैसे खर्च होने दो, सबसे बढ़िया वेबसाइट भारत टूरिज्म का होना चाहिए। मैं अभी लगभग 60 कंट्रीज का वेबसाइट देख रहा हूं। मैं सभी देशों में जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वेबसाइट में, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वेबसाइट का काम टेंडर किया हूं मैं। सबसे अच्छा न्यूजीलैंड का वेबसाइट हो, सबसे बड़ा वेबसाइट है, अच्छी बढ़िया वेबसाइट है। उससे अच्छा वेबसाइट मेरा न्यूजीलैंड का उससे अच्छे वेबसाइट हम बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा भी हम्पी के बारे में, अजंता का एलोरे के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बारे में, जो भी जितने मार्केटिंग करना चाहिए हम विदेशों में मार्केटिंग नहीं करते, साउथ इंडिया के बारे में भी। इसलिए अगर वो मार्केटिंग ठीक के तरीके से हो, जरूर अभी टूरिज्म का बहुत अच्छे भविष्य भारत में होगा। चलिए, I must congratulate you, sir, and thank you for giving us time. We held you back. I know it's late in the day, but I wish you best of luck for the sort of a mission impossible you have taken to implement the G20 vision of the Prime Minister. Thank you very much.